मैं आपको सी माइनस देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी सी माइनस की है. Two options: either you become a doctor or an engineer, the most well paid and well respected. I was interested in neither of them. देखो, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा डर है, सबसे बड़ा दुश्मन. हम लोग को अपनी इज्जत अपने साथ ख्याल करनी चाहिए, उसके बाद हम लोग से we have to respect ourselves. So hi guys, I welcome you all to this new podcast. Today we are with a special guest. His name is Dr. Nasar Shakeel Roomi. Currently he is working as a professor at Jawaharlal Nehru University. In this podcast, he talks us through lots of different topics. For example, health, career, how to tackle fear and so on. So I welcome you all to witness Roomi sir with his extraordinary story. So hi guys, I welcome you all on this new podcast. So today we are so grateful to have Roomi sir with us. So today we'll be trying our best to learn from his journey. So hello Roomi sir, I welcome you on this podcast. Sir, we have started this podcast. In this podcast we try our best to learn from our guest. So today you are guest because we have motivated a lot in our first year when we met on our orientation class. You told us to be happy and something like that, and from that day you were one of our favorite teacher or favorite professor in our Russian studies. So sir, आज हम लोग कुछ questions आपसे पूछेंगे and we'll try our best to learn from that. So our first question, sir, what is your story, where and how your journey started? You want to know the experience as a teacher or from your childhood, sir? From my childhood? Oh my God. My childhood, I actually don't actually try to remember, because my childhood was a bit different from, not a bit, a lot of different from the childhood of other people. I was physically handicapped, right? I had polio in a very early age of my life. So I became a very protected kind of a person in my house. My mother and my father would not let me go out, or they were scared that others will, make fun of me or not play with me, I'll get hurt. So I was very protected in that sense. From there onwards till I went to the school, I started my schooling also very late because my parents never wanted me to go to the school. The reason being that being physically handicapped, they were scared that other students will make fun of me and I'll feel bad, I'll get hurt. So they said that it's better that if you can study at home. Tutors were there, they used to come and teach me. But I insisted that I have to go to school. So I went to school, finished the schooling, and then I, अब तो शायद उतना नहीं है, लेकिन it used to be like that. We had to you become a doctor or an engineer, the most well paid and well respected. I was interested in neither of them. I didn't want to. I started not paying attention to my studies. When from schooling I had to go to a college. I just couldn't get into this subject of either medicine or engineering. It was just not happening. And my father was quite upset that Rumi is not going to study anything. And suddenly that, it's just my luck that in the Kashmir University, I was born there, so my father was posted in Kashmir. So Kashmir University started a certificate course in Russian. So my father said that since you are not doing anything, just try and complete this certificate course. The moment I had entered that course, I started scoring very well. My teacher was very happy. And in between, before even completing the certificate course, I was told that there's a university called Jawaharlal University, where they have a Center of Russian Studies. So why don't you apply it there? So I applied and got it. And I loved every bit of it. My whole life changed into a different platform, and even today, I'm so happy that such a thing happened, that I came to JNU to study Russian. And in JNU, if you ask me about my experience there, this JNU what you are seeing today is totally different from what it was when I was a student. Then I told you people also that the number of students very less, number of faculty members very less. It was not such a big university, So it was almost like a compact kind of a unit. We knew everybody from other centers, they knew us. And my maturity, if it has come to me, whatever, is thanks to JNU. It's the kind of atmosphere that I got in JNU
was absolutely like building my life. Today I am so happy that I started working also in JNU, and it's my luck that immediately after completing my MA here, I went to Moscow for my PhD, and immediately after completing the PhD, I got the job, and since then I'm here. That's my short story. क्वाइट इंटरेस्टिंग सर. योर चाइल्डहुड वाज बहुत हम लोग रिलेट कर पाते हैं सर हमारे भी स्कूल डेज में. ऑन द बेसिस ऑफ मैनी थिंग वी फील्स डिफरेंट, लाइक हमारे फ्रेंड्स कभी कभी दे मेक्स फन ऑफ मी और फन ऑफ अस. Sir, it was so hard for you, I guess. I can feel many of our friends can feel who are going through those type of conditions. So, sir, in your school days, how you used to manage all, like वो सारे आपको बोल रहे हैं? Actually, in school, it was totally a different thing, because but my parents were scared that बच्चे छेड़ेंगे, मजाक उड़ाएंगे. It never happened. That school was. The teachers were very good. They took special care of me. Nothing special as such, but they took care of me so that I don't have to run for the bus, or the bus will keep on standing till I get in and sit down on the chair. And my classmates were also so good. They never let me feel that I am physically handicapped. Never. उनके साथ क्रिकेट खेला है, उनके साथ मैंने फुटबॉल खेला है. All games I played with them, and I never felt myself, that, and if somebody is saying that you're physically handicapped, you cannot do it. That situation never happened in school. Sir, and thank God. Sir, like you have studied at Moscow, JNU, even Kashmir. Sir, what are some learning you have gathered in the college days, which we can, like we are a first year, second year student, which we can implement? Well, I can't pinpoint one thing that I have learned, because the life itself. You'll agree that it's a kind of a journey where you keep, making mistakes and learning from them. The journey of anybody's life is like that. It's not a smooth sail anyway. You have your hardships, different kind of hardships, right? कोई problems होते हैं. कभी आपसे कोई मिस्टेक हो जाते हैं, गलती के बाद में एहसास होता है कि मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था. So this whole process, from the school days up to this stage I'm here, I don't know how many mistakes I might have made in my life, but each mistake, all of you should remember that it's a stepping stone. Every time you make a mistake, you realize the mistake and don't repeat it, because you're a human being. You will make mistake. There's no question of not making mistake, but one should not repeat that mistake. This is what a very thing that I keep telling my students. Don't ever hesitate, because until unless you make mistake, you will not realize whether you are right or wrong. You have to make a mistake to understand that this is wrong. This is not the way it should go. Yep. So that journey from my school days up to here, it has always been a learning journey. I don't consider myself as a complete person now. अब मुझको क्या सीखना? No. The person has to keep on learning, because new experiences come. For me, the students, every year I get new batches. Every year it's a new challenge. It's a complete new challenge for me, because of course there's age difference, number one. Number two, every student is different from another student. Every human being is different. Forget about students. So every batch becomes a kind of a challenge for me. I learn from the students, from their mistakes they're making, so that I learn that this student should not make that mistake. Let me put it in another way so that the student understands and does not make that mistake again. So that is what I have been doing. Okay, sir. Sir, recently we are going through your Instagram post, and Sorry? we are going through your Instagram handle, and we saw that you have wrote in bio, painting is passion and cooking is soothing. Could you elaborate this? That is true. Although I've got lot many hope, it's kind of a painting. Yes, I really love painting. I relax when I paint. And when your hands get dirty with paints and you don't know what is going to happen in the last, the end product. So it is kind of a very interesting kind of a journey, when you start painting. It gives you some kind of a different world that you are in. I don't paint portraits. I don't paint realistic paintings. No.
it is my imagination, my thing that comes on this canvas. I never take a photograph and trying to paint that. Neither I see this tree and say, okay, I'll paint this tree. No, it's just inside my brain when I start the canvas. How it would be if it is like that. The sun rises from there. कहाँ पे reflection आएगा, कहाँ पे क्या आएगा. So it's all made up. It's kind of a Rumi's canvas, so to say. As far as cooking is concerned, I love cooking. I really love. It is not a daily kind of a routine, but I try to make dishes from many countries, right? Like I love Turkey. Actually, the entire Mediterranean, cuisine is so fascinating that it is like wonderful. There are so many dishes that we cannot, get in the market or in the Zomato or somewhere, जो कि आपको के recipes जो है आपको YouTube में मिल जाते हैं. So I just see those and try them. And in the process of this cooking, I also learn about the culture of that country. Their system, how they cook, how they how they live. So it is also not only, for example, there's let's say kind of a dish. There are so many stories behind that. हम लोग के यहाँ भी बिहार में भी जो कितने सारे डिशेज हैं, उसमें उसके बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके साथ जुड़ी हुई. तो वो जो है मैं लिखता हूँ जो मुझको मालूम होती हैं. तो वो एक कुक बुक ही नहीं बल्कि एक कुकिंग स्टोरी सॉर्ट ऑफ थिंग हो जाता है. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं सिर्फ घर वालों को खिलाता रहता हूँ. जब भी बनाता तो उतना ही क्वान्टिटी बनाता. तो आई कीप ऑन आस्किंग, बताओ क्या कमी है और क्या करना चाहिए. When I started baking bread, so my younger son is a chef, right, in a restaurant. Okay. So he's an expert cook. So I used to take the bread to him and say कि मेरे बताओ ना इसमें क्या कमी है. So he would take the slip and say, पापा इसमें density ज़्यादा है, इसमें इतना है, इसको और नीट करना है. So he became my teacher as far as baking bread is concerned. One day I got the compliment that Papa, you have done it absolutely perfect. So that was your best moment, I can. Yeah, of course, I was so delighted. Sir, you also motivate us in health thing. So we all know that you wake up by 4 and you go for a run, cycling. So could you tell us what is your typical health care routine? Well, I have been a very careless person, basically, as far as health is concerned. Very careless. जो मिला खा लिया, जो मिला पी लिया, मतलब बाहर का खाना आना सब कुछ मतलब चलता है. When I was, if you see my photograph, when I was a student, I was thinner than him, much thinner than him, like no part at all. So what happened was, I think I don't know how many years back, ये केंद्रीय विद्यालय देखा है ना, वहाँ पे जिम है. So one day I decided let me try here, क्योंकि हुआ क्या कि ऐसी शौक था, चलो देखते क्या होता है. तो वहाँ से उसको एक वो when you started getting the result, then it becomes kind of पागलपंती कि बस ये तो बहुत बढ़िया है यार, इससे तब हार मिलता है. As far as cycling is concerned, I have been cycling since my school days. Now I told you that I'm physically handicapped, but that became a challenge. मैं साइकिल चला के दिखाऊंगा. चाहे एक पैर से ही चले लेकिन चलेगी, कैसे नहीं चलती. कितने बार गिरा, कितने बार बोचे आए, फ्रैक्चर हुआ, सब कुछ. I didn't leave it. I love cycling. I just love it. And especially I go early morning, JNU especially, that ideal place for that. Very early. जब आप लोग सोने जाते हो तो मैं साइकिलिंग के लिए जाता हूँ. Yeah. तो एक तो आप जब साइकिलिंग कर रहे हैं तो एक तो आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है बिल्कुल कहीं और. द बेस्ट काइंड ऑफ मेडिटेशन जिसको कहते हैं, जहाँ पे आप हवा भी चल रही है, मतलब आपका मूवमेंट भी चल रहा है, एंड योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. you're not tense. So that also became kind of a क्या बोलेंगे, नशा सा सॉर्ट. You cannot live without cycling. जिस दिन मैं साइकिलिंग नहीं करता हूँ उस दिन मेरा मूड बड़ा खराब रहता है.
और एक्सरसाइज तो मैंने कंटिन्यूसली जब से वहाँ से कि उसी वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि इट्स अ पब्लिक स्पेस, तो हर वक्त मुझको ज़रा ना अजीब सा लगता था, कुछ अनकंफर्टेबल सा कि सब लोग तो इतना अच्छा एक्सरसाइज करें. So what I did was that I invested some money and made my gym here itself in my house. Wow. तो complete gym है almost. तो अपने टाइम पे अपने वक्त पे जब मन किया तो अपना एक्सरसाइज. अभी सर आपका मैक्सिमम पुशअप्स उससे फायदा ये हुआ बेटा, देखो मैं आप लोग को भी सजेस्ट ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग जिम ज्वाइन करें. स्मॉल थिंग्स लाइक वॉकिंग, jogging, it gives you something that it gives a kind of your brain is cleared. ये बॉडी में एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन जाग जाता है. एक तो हैप्पी हार्मोन होता है जिससे आप खुश रहते हो, राइट. और एक और होता है जिसमें आपको अपने आप में ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि देखो आज मैंने 1 किलोमीटर वॉक किया, आई मेड जल्दी से नोट कर लो आज के दिन 1 किलोमीटर. नेक्स्ट डे हो सकता है तुम 1.5 किलोमीटर दौड़ोगे. वो तुम्हारा पैशन बढ़ते जाता है. जैसे मेरा ये डेड हैंग है, आई स्टार्टेड विथ 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड हो गया, अरे वाह क्या बात है. नाउ आई एम डूइंग इट 3 मिनट्स, प्लैंक्स 3 मिनट्स. मतलब वो एक लिमिट मैंने रखा था कि इसको तो मैं टच करके छूँगा. पुशअप्स 40. सर लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया 35, अभी आप 40 हो गया. हम 50 के लिए ट्राई करें. सर our next question is, sir, what is your typical mental health care routine? Like nowadays we have seeing lots of stress, depression. उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हो? You mean the tension that you're going Yeah, through? yes, sir. Well, I'll suggest only one thing, that the moment you actually allow the tension to become more powerful, you will be absolutely a disaster. You will be a wreck. I am a person who is very sensitive. बहुत मैं अपने आप को जो है मुश्किल से मैंने ठीक किया. छोटी सी बात होती थी बस, रूमी का तो ऐसा टेंशन कि कुछ भी नहीं कर सकता था. मैंने अपने आप को खुद ट्रेन करना शुरू किया. देखो टेंशन जिंदगी में किसको नहीं आती है, तुम्हें भी आएगी, तुम भी इंसान हो. लेकिन डोंट लेट दैट टेंशन बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ योर होल अटेंशन. आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप टेंशन को टेंस होकर सॉल्व करना चाहोगे, नहीं होगा. आप जितने भी मुश्किल काम है उसको आप टेंस होकर काम करिएगा, अभी ख़त्म करना, इट विल नॉट हैपन प्रॉपरली, कैन नॉट डू इट. आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना होगा. टाइम इफेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपका उसका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. मैंने अपने आप को ट्रेन करके रखा है एब्सोल्युटली. मेरे पास कोई भी 1 सेकंड का इधर-उधर नहीं होता है. डिले करूँगा काम, कई बार मैंने अपना काम जो है बहुत डिले किया, लेकिन जो डेडलाइन है मुझे पता है कि इतना दिन तो मुझे लगेंगे, तो लेट मी स्टार्ट नाउ, तो मैं उसको करके खत्म कर दूँ. क्योंकि वो एक बोझ सा बना रहेगा आपके सर पे. आप लोग जैसे आप लोग का कल कंट्रोल नायरक होता है, लिटरेचर का कंट्रोल नायरक होता है, आप उसी टेंशन में मर जाते हैं कि पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या सवाल पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या हो पाएगा कि आप कैसे तैयारी करोगे. यू शुड नो व्हाट यू नो, यू जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट. आपके पास 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ट फ्रॉम योर साइड. आपको रिजल्ट का सोचना ही नहीं. आप जैसे आपने सोचा कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका रिजल्ट ऐसा ना हो जाए, बस होगा इनका. आपको रिजल्ट का सोचना ही नहीं. आपको सोचना है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, जो मेरी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं करूँगा. आपको C- मिले तो क्या हो गया, A+ मिला तो क्या, कौन सा तमाशा, कौन सा आपने पहाड़ उठा लिया, नहीं. इट डजंट मैटर. आपको कंट्रोल ना है, मैं आपको C- देता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी कैपेबिलिटी C- की है. ये मेरे बायस है कि मैं आपको समझता आप C- के हो. उससे आपका जो वो है कॉन्फिडेंस लेवल टूटना नहीं चाहिए. आपको अपने आप को जानना चाहिए कि हाँ चल, अब उनको लग रहा है मैं C- हूँ, ठीक है. कई लोग यार कहेंगे कि लड़का जो है रूमी जो है ना स्मार्ट नहीं, तो मुझको क्या फर्क पड़ता है, तो तुझको दिख रहा है मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझको लग रहा है मैं स्मार्ट हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ. यू सी, इफ द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो तुमसे काम हो ही नहीं सकता. आप अपने कैपेबिलिटी पे विश्वास करिए. आपको कोई C- दे तो वो उसकी प्रॉब्लम है. जैसे C- दिया आपको, वो आपको C- के लायक समझता, आप तभी समझते ना. कभी मत सोचना कि अगर आपको C- दिया तो आप C- के लायक है, कभी भी मत सोचना. क्योंकि अपने नज़रों में अपने आप को जितना ऊपर रखोगे उतना अच्छा है. उसको अपने आप को उस लेवल पर रखो
जहाँ आप उसके साथ इज्जत कर सको। हम लोग को अपनी इज्जत अपने साथ पहले करनी चाहिए, उसके बाद हम लोग किसी और की इज्जत कर सकते हैं। वी हैव टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स। ग्रेट सर, अभी आपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया सर, व्हाट इज योर टिपिकल डेली रूटीन? Oh, my typical daily routine is quite hilarious actually. You know, basically I have my dinner very early, around 8 o'clock. And by 9 o'clock I am sleep. Yeah. Absolutely asleep. And I wake up at 3 in the morning. Yes, sir. And from then onwards I do my gym, then cycling. Right? अगर क्लास है सुबह 9 बजे तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। By 7:30 like I'm ready for the center. I reach the center around 7:45. My classes start at 9, but I need at least 1 hour calm myself down, get prepared for the class. क्लास के लिए सिर्फ आप लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। मैं भी जब क्लास में जाता हूँ तो पहले मैं प्रिपेयर करके जाता हूँ कि आज ये पढ़ाना है, क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, उसकी तैयारी कर। That's my usual. Daytime I have to have a nap. कम से कम मैं 1 घंटा सोता हूँ, बहुत ज़रूरी है। वो सोने के बाद जाकर थोड़ा सा फ्रेशनेस आती है। मेरे काम करने का जो है वो अलग सिस्टम है। मैं ज़्यादातर सुबह काम करता था, जब अब तो खैर रिटायर हो रहे हैं इसलिए अब उतना काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई का काम होता है तो सुबह मुझको ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं रात में नहीं कर पाता। दिन में जितना काम कर सकता हूँ करता हूँ। बेसिकली जो जितना मेन दिमागी काम है वो सुबह ही होता है मुझसे। Sir, again you just told us about retirement. So sir, अभी आपके Instagram post पे we are going through and we saw a story like you have written something, when I'll retire that will be my day. So could you tell us what you meant by that? Yeah, retirement में actually you know why I'm not unhappy. लोग कहते हैं कि रिटायर हो रहे हैं तो लोग का मुँह सूख जाता है, अब क्या करेंगे, अब तो कुछ करने के लिए नहीं। आई एम नॉट, यू नो, मेरे साथ ये है कि मैं आई विल रिटायर एज अ वेरी हैप्पी पर्सन, क्योंकि मेरे इसमें एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है। देखो मेरे पास मेरे पास बहुत बड़ी जायदाद है, ना ही मुझे कोई शौक़ है कि मुझे कोई अवार्ड मिले, ना ही कोई शौक़ है कि मेरे पेपर दुनिया में छपे या दुनिया भर में मैं जा करके कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करूं। मेरा सबसे बड़ी जायदाद अगर कोई है तो वो स्टूडेंट्स हैं, सबसे बड़ी जायदाद। और अगर स्टूडेंट्स ने सब कहा कि रूमी सर की क्लास में अच्छा लगता है या रूमी सर अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे इससे बड़ा कोई अवार्ड चाहिए नहीं, यू नो। और आज मैं रिटायर हो जाऊँ तो मुझको इस बात की बहुत खुशी होगी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेरी इज्जत करते रहे और हमेशा मुझसे प्यार करते रहे। मुझे इससे ज़्यादा खुशी चाहिए। और इसी तरह अगर मैं ये 1 साल गुजार दूँ, सब स्टूडेंट्स खुश रहें मुझसे, आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी कि मैंने अपना जॉब किया, ढंग से किया, ईमानदारी के साथ किया। So sir, this question is something like that sir, कि आपने अभी 30+ ईयर आपने बच्चों को पढ़ाया, so what you have noticed, what are some characteristics कि एक बच्चा सक्सेस करता है, एक बच्चा है they don't do well good in their life, so what you have noticed? मेरी तो फिलॉसफी एक ही है कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को भूला नहीं। मैं जब आप लोग को पढ़ाता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ को भूलता नहीं। मैं भी किसी दिन वहाँ बैठा था जहाँ आप बैठे थे, मुझसे वो गलतियाँ हो रही थी जो आपसे, मुझे भी उतनी परेशानी हो रही थी कोई चीज़ समझने में। तो मैं अब अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि हाँ उस स्टूडेंट को क्या परेशानी है, क्या हेजिटेशन है, क्यों है। मेरे पूरे पढ़ाने का जो तरीका है वो हमेशा मैं ये ध्यान रखता हूँ कि ये मत समझो कि मैं अपने लेवल से आपको टेस्ट नहीं कर सकता। मैंने इतना एक्सपीरियंस है मेरा, मैं कितना पढ़ा लिखा होगा, जो भी किया होगा, मैं अपने लेवल से आप लोग को नहीं देख सकता। मैं अपने आप को उस लेवल से देखूंगा जिस लेवल पे मैं था एज ए स्टूडेंट, यू नो। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का। मैं तो समझता हूँ कि ये मुझको अब दिखाना नहीं कि मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट नहीं। मैंने कितना कुछ सीखा है स्टूडेंट्स से। आप लोग की डिफ़िकल्टीज मुझको सिखाती हैं, रूमी देखो वो जो तुम कह रहे थे उसको समझ में नहीं आया, यू नो, तो इसको ठीक करो कि ताकि उसको समझ ले जाए, यू नो। ये नहीं है कि मैं उसको ठीक करूँ, अरे उसको कैसे ठीक करोगे जब तक कि तुम खुद अपने सिखाने के तरीके को बदलोगे नहीं। क्योंकि यू सी गौरव, द थिंग इज दैट एवरी
semester you have a different kind of a student. Yes, sir. Right? Within a group there are different students. He is different, you are different, you are different. I have to see how you actually react to my teaching, how he reacts and how you react. All three of you will react in a different manner. है ना? तो मुझे ये नहीं देखना कि हाँ तुम A+ स्टूडेंट हो, ये C1 स्टूडेंट है तो इसको हटाओ और इससे बात करते हैं ना. उसको ये देखना है कि वो C1 है क्यों, उसमें क्या परेशानी है, उसको मैं ढूंढता हूँ, उसकी ट्राई करता हूँ कि उसको किसी तरह से उसको अपने आप में विश्वास हो जाए. Yeah, quite deep, sir. Sir, our next question is on death, love, and money. Sir, on death, love, and money. So we ask this question. Love and money. This is particular, like a particular. What do you think about these three words? What you can elaborate particularly about the death, about love, about money, because we are in our first year and we really want to discuss this thing. Actually, money is very important. I know. Well, I don't know. It is very relative. All of these issues, yet people say that money cannot buy everything. है ना? But money does buy many things, right? Yes. तो आप ये नहीं कह सकते हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है. सवाल ही नहीं पैदा होता है. आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना? लेकिन हर चीज़ में, चाहे वो प्यार हो, चाहे पैसा हो, आपको एक ह्यूमिलिटी एक चीज़ होती है. आप कुछ लोग होते हैं जो करोड़पति होते हैं, उनका दिमाग आसमान में होता है. और कुछ करोड़पति होते हैं जो कि बिल्कुल आराम से आपसे मिले जुलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कितने पैसे हैं उसके पास. इसी इन हर चीज़ों में, प्यार में भी आप हावी नहीं हो सकते. एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक म्यूचुअल अफेक्शन है. यू कैन नॉट जस्ट जंप एंड से कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो उतना ही जितना मैं करता हूँ. तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कितना प्यार करते हो, क्योंकि वो तला नहीं जा सकता है. वो इंसान समझाएगा कि तुम कितना प्यार करते हो जिससे तुम प्यार कर रहे हो, है ना. वो बताएगा कि हाँ तुम्हारा प्यार बड़ा है या छोटा है या सच्चा है, जो भी तुम नहीं बता सकते ना. और ये जहाँ तक के पैसे का मामला है, क्योंकि आई थिंक जितना पैसा होगा वो कम है. आज के ज़माने में तो कहते ही है ना, वो रशियन में स्टोल का नहीं दाए, स्कोल का नहीं दाए, स्टोल का माला. जितना भी दो उतना कम है ना. तो ये कोई एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हमें पैसा ही कमाना है. कमाए बगैर तो नहीं रह सकते ना, भूखे तो पेट तो नहीं कोई रह सकता. And what about, sir, death? लेकिन हाँ, about death, what do you think about death? Death? Yes, sir. मौत. Yes. पता नहीं यार, मैंने तो देखी नहीं है इसलिए कह नहीं सकते, और ना ही मैं सोचता हूँ उसके बारे में. अल्टीमेटली सबको जाना है यार, Yes. तो क्या है ना. लेकिन वो कोई हम लोग का कोई अप्रिजिलियम में ग्रेमिया तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं. इंसान किससे डरता है? जिसको वो नहीं देखा है. उसको भगवान से डर लगता है क्योंकि भगवान को देखा ही नहीं. उसको मौत से डर लगता है क्योंकि मौत को देखा है ना. तो एक ये जो है हम लोग के यहाँ इस्लाम में तो है कि मरने के बाद जो है आपको खुदा जो है बुलाएगा और आपको बताएगा कि भाई आप कैसे थे. अब ये है अलग अलग, किसी को जन्नत, किसी को क्या नसीब होगा. लेकिन आई डोंट थिंक अबाउट डेथ एट ऑल, क्योंकि उसके बारे में सोचने का सेंस ही नहीं बनता है. कोई सेंस नहीं बनता है. अब ये आप कई लोगों को देखा है, क्या करना है, मरना तो है, क्या छोड़ो रहने दो, तो आपकी ज़िंदगी भी गई ना आसान काम से. तो ये एक चीज़ है जिसको मेरे ख्याल से अपनी डिक्शनरी से निकाली देना चाहिए कि होगा, वो तो हम सबको पता है, मटेरियल है हम लोग, फना तो होना ही है ना. तो उसको कोई एक अपने डिक्शनरी से मैंने तो हटा दिया, आप लोग हटा दीजिए. सर एक सर मेरे साथ ये हम यंगस्टर के साथ बहुत दिक्कत है फियर का. सर वी आर सो, जैसे आप हर वक्त क्लास में बताते हैं कि डोंट हेजिटेट, लेकिन देयर इज हेजिटेशन विद इन अस. सो हाउ टू ओवरकम इट इन एवरी. या फियर डर सही से बोल नहीं पा रहे हैं या सही से लाइक वी आर स्केयर्ड. मैं तो वही तो तुम लोग से कह रहा था. देखो, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा डर है, सबसे बड़ा दुश्मन. वो ना तुम्हें चैन से जीने देगा, ना मरने देगा, ना खाने देगा, ना पीने देगा. ये डर जो है आपको हटाना ही पड़ेगा हर हालत में. और उसको कैसे हटाइएगा? आप क्या सोचिए मत, डरना क्या. मैं तो वही कह रहा हूँ, जैसे अभी आप कंट्रोल लाइन रोबोता मेरे सामने दे रहे, टेस्ट दे रहे हैं आपके सामने, तो आप तो इतने नर्वस हैं कि रूबी सर क्या पूछ लेंगे. अरे रूबी सर क्या पूछ लेंगे, पूछ लेंगे.
मुझे आएगा तो जवाब दे दूंगा, नहीं आएगा तो कह दूंगा सर आई एम वेरी सॉरी। जो डरने की बात है। अब जैसे आप घबराएंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि किसी चीज़ में, एग्जाम्स को छोड़ो, कोई चीज़ भी, चाहे आपका कोई कहीं पे कोई मीटिंग है या आपका कोई इंटरव्यू है या कुछ भी है, या तो आपको अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है, आपको डर लग रहा है, अरे डरने की क्या बात है, आप ही के पेरेंट्स हैं, जाइए। मीटिंग में क्या होगा, आप अगर अपनी तैयारी करके जाएंगे ठीक से, जो आपको आएगा आप उसी का जवाब देंगे ना। कोई वाइवा होगा तो वही जवाब देंगे। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, मेरा यहाँ पे जो मतलब प्रोफेसर का जो वाइवा हुआ था, सवाल ख़त्म भी नहीं होना था, मैं जवाब दे रहा था आराम से। एक सवाल था जिसको मैं नहीं आता था, मैंने साफ कह दिया वेरी सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। मामला खत्म, कोई किसी ने चाकू थोड़ी मार दिया मुझे। दे न्यू दैट रूमी के पास कॉन्फिडेंस तो है, कह रहा था साफ साफ की, वो घुमा फिरा नहीं रहा है। इसी कुछ स्टूडेंट्स की बात है, मैंने स्टूडेंट्स से मैंने बहुत लोगों को देखा है, नहीं आता है तो वो इधर की बातें करते रहते हैं, जो मुद्दा मेन क्वेश्चन है वो उसका जवाब देंगे नहीं क्योंकि आता नहीं। तो मैंने तो साफ कह दिया आई एम वेरी सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, मामला खत्म। तो इम्प्रेशन क्या पड़ा कि रूमी के पास कॉन्फिडेंस है, जो जानता है वही बता रहा है, जो नहीं जानता नहीं बता रहा है, मामला खत्म हो गया। तो ये डर आपको निकालना ही पड़ेगा, जैसे डरोगे मरोगे। Okay, sir. Quite again, we learned a lot by this year. You should not be always scared about that thing. आप अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर करके जाओ और अब जो होगा फिर देख लेंगे। बिल्कुल, आप लोग को अपनी तैयारी करनी चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत सिखाता है, जैसे हम लोग, मैं तो खास तौर से मैं स्टूडेंट्स का बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ जब वो टेस्ट देने के लिए आता है, मुझे साफ पता चल जाता है कि इसकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जितना आता है उसको अच्छी तरह से जानिए। और ये जो है ना, मैंने कई बार देखा कॉरिडोर में, क्या पूछा उसने कहा ये पूछा, रही ये तो नहीं मैंने पढ़ा, इसको जल्दी से मैं देख लूँ। लास्ट मोमेंट में तो नहीं होगा ना, लास्ट मोमेंट में कोई तैयारी नहीं हो सकती है। तो तैयारी तो आपको शुरू से करनी है। नंबर 1 डिसिप्लिन अपने लाइफ पे लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका खाना हो, पीना हो, घूमना हो, पढ़ाई हो, कुछ लिखाई हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को डिसिप्लिन करना कि काम करो तो बस उसी काम के बारे में सोचो और कुछ मत सोचो। मैं तो, तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं कभी भी कोई काम करता हूँ तो मैं 1 घंटे से ज़्यादा एक सिटिंग करता ही नहीं। मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ में जब भी मेरा कोई सेशनल टेस्ट होता था, एक सिटिंग 1 घंटे से ज़्यादा मैं करती नहीं था। मतलब वो 1 घंटा जो है पूरा कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि मुझे पता था 1 घंटे के बाद मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा, तो 1 घंटा क्या रख दिया। उसके बाद थोड़ा सा घूमे फिरे, जो भी किए आए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटा या 3 घंटा जो है मैं तैयारी करता था मैक्सिमम। लेकिन जो तैयारी करता था वो पूरे मतलब कंसंट्रेशन के साथ, पूरे उसमें जितना भी है सब कुछ दे दो, किसी और चीज़ के बारे में सोच। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करिए, आप एक्सरसाइज करिए, साइकिलिंग करिए, आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है ना, है ना, राइट? यस सर। तो ये जो क्वेश्चन वो भी है, जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाएगा जैसे ही आपके पास डिसिप्लिन आएगी। आप चाहे मुझे बोलिए ना, चाहे चलिए गंगा ढाबा में चाय पीते हैं, तो गंगा ढाबा में चाय पी रहे हैं तो वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टेंशन उतार रहे हैं, तो एक रिलैक्सेशन होता है। तो डोंट थिंक कि नहीं मैं तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलूँगा, मुझको मेरा तो कल एग्ज़ाम है। मैंने कभी नहीं किया, मैं पर्सनल से बोल रहा हूँ। जब मेरा कंट्रोल नहीं होता तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं सिर्फ कमरे में बैठा रहा हूँ, तैयारी करता रहूँ, मेरे बस का ही नहीं है। मैं आराम से जाता था बाहर, चाय कॉफ़ी जो भी स्टूडेंट मिल जाते थे दोस्त, उनके साथ बातें करते, उसके बाद आके पढ़ते थे, थोड़ा सा भाई भी रिलैक्स होता था, सब कुछ। लेकिन कोई चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसे मान लो 5 घंटे तो आप ढाबे में बैठ गए, वही मैं कहना, इसलिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है। यस सर, इसलिए डिसिप्लिन की ज़रूरत है जी। ओके सर, so moving to our last question. Yeah. So sir, if our younger generation or our first year student or like even our classmates are watching, so what are some piece of advice you want to give to them? मैं तो एडवाइस ही दे रहा हूँ सर। एडवाइस तो बस एक ये है कि नंबर 1
अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे भरोसा। और कैसे आएगा ये भरोसा? जब आप अपने आप को सिखा देंगे कि भैया कल एग्ज़ाम है तो मैं आज पढ़ाई नहीं शुरू करूँगा, मैं शुरू करूँगा बहुत पहले से। रेगुलर क्लासेस आने के लिए मैं क्यों कहता हूँ कि रेगुलर क्लास आइए और क्लास के बाद आप जो है घर में जाकर के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, वो मत करिए। क्लास से आइए, आधा घंटा उसको एक बार रिवाइज करिए कि आज क्या हुआ है, बस, ज़्यादा नहीं। और जो होमवर्क है वो कर लिया आपने। तो इससे क्या होगा कि आपके पास कंटिन्यूसली जो है आपकी प्रिपरेशन रहेगी। ये लास्ट में पढ़ने वालों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि चलो रट लेते हैं, बाय हार्ट याद करके बोल देंगे। उसी में किसी ने मेरे जैसे किसी टीचर ने कुछ ज़रा सा इधर से उधर क्वेश्चन पूछ दिया, स्पेशली लिटरेचर में ना, मैं यहाँ से वहाँ से पूछ लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि ऐसे ही याद करके आ गए। दैट इज़ नॉट। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, अपने टीचर से डरना तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मतलब गुनाह है। इट्स अ सिन। आपका टीचर वैसा होना चाहिए जिससे आप 10,000 बार सवाल पूछें, 10,000 बार कहें कि आप रिपीट करें, सर मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है। एंड टीचर हैज़ टू डू इट, ही हैज़ टू रिपीट इट। क्योंकि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बाकी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स नहीं कह रहा। मुझे कोई भी स्टूडेंट कहता है कि सर ये बात समझ में नहीं आई, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए, मुझे ज़रा भी सेकेंड भी नहीं लगता है, मैं उसको रिपीट करता हूँ, चाहे बाकी लोग बोर भी हो जाएं, लेकिन आई रिपीट। तो स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स को सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ने आए हैं, आप लोग ऐसे यहाँ पे घूमने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे ना आप लोग। जो टीचर है उसको तनख्वाह मिल जाएगी, वो आपके साथ 2 सेकंड ही बात करेगा ना, तो घर चला जाएगा, सैलरी तो उसको आ ही जाएगी। लेकिन जो आपका मकसद है वो तो पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ये क्या बोलते हैं, जो ये डर है अपने दिमाग से निकाल दीजिए। खुद बहुत डिसिप्लिन रहिए, अपना खुद टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। इतने बजे से इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूँगा, चाहे वो शाम के 4 बजे से 5 बजे हो, 6 बजे 7 बजे हो, जो भी हो। तो एक आप अपना खुद एक टाइम टेबल बनाइए, सारे का टाइम टेबल है। उसके अलावा जो आपका जो शेड्यूल है आप वो बनाइए और स्टिक टू इट। और एक हफ्ता वो वाला टाइम टेबल यूज़ किया, मालूम हुआ कि नहीं यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपका टाइम टेबल आप आराम से एडजस्ट करिए, है ना। तो दूसरी बात तो ये हो गई। और फिर आप लोगों को एक वो भी सोचना चाहिए कि एक तो ग्रेड्स जो है ये आप लोग को हमेशा चिंता में पहुँचाते रहते हैं। यू नो मैंने अपने ग्रेड्स मैं कभी टीचर क्लास नहीं किया, सर बता दीजिए क्या ग्रेड आया आज तक, मतलब जब एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता कि मैंने जो जवाब दिया मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, वो दैट इज़ द पॉइंट। मुझे नहीं मालूम उससे B+ दिया होगा या C+ दिया होगा, A1 दिया होगा, मुझे नहीं मालूम। जब ग्रेड आएगा तो देख लूँगा। लेकिन मुझको खुद जब मैं हॉस्टल वापस आता था तो मैं सोचता था मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो किस लेवल का दिया, बस मैं खुद ही अपने आप को ग्रेड कर देता था। तो ग्रेड्स से आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कि मैं CGPA कैसे बढ़ाऊँ। अरे कैसे बढ़ाओगे? पढ़ाई लिखाई करके, डिसिप्लिन ला करके, अपने आप पे भरोसा ला करके। दैट्स हाउ यू एक्चुअली इंक्रीज योर ग्रेड, है ना। यस। और क्या, बस ये 3 चीज़ें अगर आप लोग याद रखेंगे, आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल। डिसिप्लिन सर, बिलीव एंड रेगुलर हार्ड वर्क। रेगुलर हार्ड वर्क भी नहीं, बल्कि मैं हार्ड वर्क तो मैं बोलता ही नहीं किसी को, मैं कहता हूँ रेगुलर वर्क। यू वोंट हैव टू डू हार्ड। अगर आप रेगुलरली पढ़ेंगे, रेगुलरली आप रिवाइज करेंगे, तो कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ जहाँ नहीं समझ आए मार्क करिए, वहाँ पे टीचर के पास जाइए, सर ये वर्क चेंज कर दीजिए फिर से। और ये उसी वक्त होगा जब आप सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट में नहीं छोड़ेंगे। यू नो अगर ये कंटिन्यूसली प्रोसेस में चलेगा तभी जा कर के ये सब चीज़ें हो सकती है ना। तो आप लोगों को अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना रिवीजन करिए, हार्ड वर्क की ज़रूरत ही नहीं है, होगी बिल्कुल नहीं होगी। इट विल गो स्मूथली, वेरी वेल। Thank you a lot, sir, for joining. It's a pleasure speaking to you. Thank you, sir.